Hello student, in the previous video we have discussed the properties of parallelogram and different types of quadrilaterals. Now today we discuss another criteria when a quadrilateral to be a parallelogram, and this is very important one. It is stated in theorem 8.8. ये क्या है? A quadrilateral is a parallelogram. Any quadrilateral to be a parallelogram if a pair of opposite sides is parallel and equal. ओके, तो अब इसको हम देखेंगे कि ये किस तरीके का कैसा स्टेटमेंट है. सपोज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ABCD is in a quadrilateral ABCD if a pair of opposite side. So what are the pair of opposite side? AB and DC, and another pair is BC and AD. So any one pair is parallel and equal. So if we assume that AB is equal to CD and AB is parallel to AB is equal to DC and AB is parallel to DC, then this quadrilateral becomes a parallelogram. Then ABCD is a parallelogram. ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हम ये अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दें. ये पेयर तो इक्वल है, ये भी हम इक्वल कर दें. तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि इफ in a quadrilateral opposite sides are equal then it will be a parallelogram. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि BC को AD के पैरेलल भी बता सकते हैं. तो हमारे पास अब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनसे हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम बता सकते हैं. तो इसके लिए हमने क्या किया? सपोज वी ड्रॉ अ डायगोनल. प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ अ डायगोनल. जब हमने यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर दिया, देन वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. सो इन ट्रायंगल ABC and triangle ADC, what we have? AB equals to CD. AB equals to CD, ये हमको गिवन है. ओके, नाउ what about this angle? Angle 1 and angle 2, they will be equal. Angle 1 equals to angle 2. Why? Because AB is parallel to CD. और ये क्या होंगे? यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सिंस AB is parallel to CD, so alternate interior angles. ये पैरेलल है तो alternate interior angles कैसे होंगे? इक्वल होंगे. एंड नाउ AC is common to both. AC equals to AC. It is a common side. So by side angle side, so by SAS congruency, triangle ABC is congruent to triangle CDA. और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा? जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होंगे. मींस दिस एंगल 3 is angle opposite to side AB and AB is same as CD, so its opposite angle will be angle 4. So this implies that angle 3 equals to angle 4. Why? By corresponding parts of congruent triangle. And angle 3 and angle 4 are what? 3 and 4 are the alternate interior angles for BC and AD, because these are the two lines and AC is the transversal. So 3 and 4 are alternate interior angles, which are alternate interior angles for BC and AD. अब ये alternate interior angle है और equal है, तो जो lines होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे.
दिस इंप्लाइज दैट BC इज पैरेलल टू AD। ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। और हमारे पास क्या था, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB is parallel to CD given है, और हमने ये प्रूव कर लिया कि BC is parallel to AD. So both the pairs of opposite sides are parallel and equal. So this implies that ABCD is a parallelogram. Okay. So in this way we can we prove this criteria when a quadrilateral to be a parallelogram. Okay. Now we come to the exercise 8.1, which is based on the properties of parallelogram and quadrilaterals. Okay. So here the first question is, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. तो डेफिनेटली ये एंगल्स के प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखा था, द एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, बट द एंगल्स, द रेशियो ऑफ द एंगल्स आर गिवन। सो इफ रेशियो आर गिवन, सो वी assume the common multiple. Okay, so let the common multiple be, let the common multiple, or you can say common factor भी कह सकते हैं, common factor भी x, multiple भी लिख सकते हैं, को factor भी लिख सकते हैं, हमने factor लिखा हुआ है। So since the angles are in the ratio 3:5:9:13, so therefore the angles are 3x, 5x, 9x and 13x. ओके, बिकॉज रेशियो है तो ये कॉमन फैक्टर है, तो आपको एंगल्स मिल गए। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी of quadrilateral, what is the angle sum property? 3x plus 5x plus 9x plus 13x. Sum of the interior angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, now we add all these. So what we have, 3x plus 5x 8x plus 9x 17x plus 30x. So this becomes 30x equals to 360. So x becomes 360 upon 30, which is 12. We get x is 12. So the angles of quadrilateral are, first angle क्या था, 3x. So 3x will be 3 into 12, which is 36 degree. Second is 5x. So 5 into 12, 60 degree. Then 9x, 9 into 12, 108 degree. And then 13x, that is 13 into 12, which is 156 degree. So these are the angles of a quadrilateral. Okay. Now we come to the next question of this exercise, question number 3. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. मैंने किसी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और किस एंगल पे कर रहे हैं, एट राइट एंगल. ओके, देन इट विल बी अ रोम्बस. रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस क्या होगा, कैसे हमने डिफाइन किया, इन अ पैरेललोग्राम इफ ऑल साइड्स आर इक्वल. इन अ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल. तो पहले हमको क्या बताना पड़ेगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम, और सेकंड पार्ट हमको ये बताना पड़ेगा कि उसके जो एडजेसेंट साइड है, यदि हमने पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया तो फिर वो चारों साइड्स कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, एक्चुअली ये एक थ्योरम है.
तो इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया हुआ है. ओके, तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ डायग्राम. लेट अस टेक this is a quadrilateral. Let ABCD is a quadrilateral. In quadrilateral ABCD, what is given? The diagonals bisect each other at right angle. So first we draw the diagonal. AC and BB are the diagonals which intersect at point O at right angle. तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स OA is same as OC and OB is same as OD and angle between AOB is right angle. तो ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा. ईच एंगल इज अ राइट एंगल. ओके, सो हियर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals AC and BD bisect at right angle, that is OA equals to OC and OB equals to OD. ये bisect कर रहे हैं and angle AOB which is same as angle BOC which is same as angle COD which is same as angle AOD, each is 90 degree. ओके, ये इसका मीनिंग है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हमें ये क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताना है. पैरेललोग्राम में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. तो यदि हमने जो लास्ट अभी थ्योरम 1 में डिस्कस किया था 8.8 कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम. ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें इस AB को यदि हम CD के पैरेलल कर दें और इक्वल कर दें और पैरेलल कर दें तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. ओके, तो और सेकंड पार्ट हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हम ये पैरेललोग्राम हो गया और ये एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया तो ये रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके, और ये दोनों इक्वल है, माने चारों साइड्स कैसे हो जाएंगी, ऑल द फोर साइड्स बिकम्स इक्वल. सो लेट अस टेक हियर in triangle AOB and triangle COD, what we have, AO is same as OC and OB is same as OD, ये given है. ओके, OA और AO is same as OC and OB is same as OD and angle AOB equals to angle COD, each is 90 degree. ये भी हमको given है, ये वाला पार्ट भी हमको क्या है, given है, माने ये all the three values are given or relation is given. So here side angle side by side angle side congruency, triangle AOB is congruent to triangle COD. ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो रिमेनिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगे, मींस तो AB इक्वल्स टू CD बाय CPCD, है ना. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो रिमेनिंग जो साइड है ये इक्वल हो गए. अच्छा, एक पार्ट. दूसरा पार्ट, ये a pair of opposite sides are equal. अब पैरेलल भी बताना है. पैरेलल के लिए हमको यदि हम ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल बता दें तो ये पेयर कैसा हो जाएगा, पैरेलल भी होगा. तो यहाँ देखिए ये एंगल 1 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. क्यों होगा, देखिए 1 इज अपोजिट टू OB एंड OB इज सेम एज OD, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, 2. ये भी बाय CPCT होगा, corresponding parts of congruent triangle. But angle 1 and 2 are the alternate interior angles for AB and CD, which are the alternate interior angles for AB and CD. AB और CD के लिए alternate interior angles हैं और ये equal हैं. So this implies that
AB is parallel to CD. ओके, तो हमारे पास दो रिलेशन है, AB is equal to CD and AB is parallel to CD from 1 and 2. From 1 and 2, a pair of opposite sides are parallel and equal, so ABCD is a parallelogram. ओके, ये नंबर 3 हो गया, हमने ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हम ये बता दें कि AB और BC इक्वल है, तो हमारा पर्पस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए फिर से इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। इन ट्रायंगल अगेन, इन ट्रायंगल AOB and triangle BOC. What we have? OA equals to OC. OA equals to OC, and OB is common to both. OB जो है वो कॉमन है, and angle AOB is same as angle BOC. Each is 90 degree. ये given part है. Again by side angle side congruency, by SAS congruency, triangle AOB is congruent to triangle COB. अब जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या हो गया, यहां पर जो राइट एंगल का अपोजिट साइड AB है, दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू राइट एंगल, दैट इज BC बाय CPCT। ये हो गया। अब देखिए, इन अ पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन ऑल द साइड्स बिकम्स इक्वल। सो दिस इंप्लाइज दैट AB is same as BC, is same as CD, is same as AD। ये रिलेशन आ गया, क्योंकि AB के इक्वल CD है और AB के इक्वल BC है, BC के इक्वल AD है, तो ऑल साइड्स कैसे हो गए, इक्वल। सो यहां आपको लिखना पड़ेगा, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, देन व्हाट वी हैव, देन ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 9, in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is same as BQ. Show that first triangle APD is congruent to CQB, second AP is equals to CQ, triangle AQB is congruent to CPD, fourth AQ is equals to CP, and last one is APCQ is a parallelogram। हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको बना हुआ है। तो फर्स्ट ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पर ABCD को क्या ड्रॉ कर लिया, एक पैरेललोग्राम। ओके, ABCD is in a parallelogram ABCD. BD is the diagonal. First we draw BD is a diagonal. Okay, BD is a diagonal. Then there are 2 points P and Q on such that DP माने towards ये P है, एक पॉइंट P, एंड BQ, B to Q, ये कैसे हैं, इक्वल है। DP इक्वल्स टू BQ, ये गिवन पार्ट है। अब यहां से APD आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ज्वाइन A to P and
सी क्यू बी, सी क्यू बी, आपको क्यू को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये पार्ट आ गया। सेकेंड ए क्यू बी, ए क्यू बी माने आपको ए को क्यू से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, वी हैव टू ज्वाइन ए टू क्यू। एंड सी पी डी, सी पी डी, तो पी को सी से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। गिवन पार्ट क्या है, डीपी इज सेम एज बी क्यू। सो लुक एट हियर, फर्स्ट इन ट्रायंगल, so in triangle APD and triangle CQB, what we have now, first thing remember, ABCD is a parallelogram, okay? So what we have in triangle APD and CQB, what we have, PD is same as QB, ये given है, ओके ये गिवन है। अब देखिए ये जो लाइन है AD, AD इज सेम एज BC, AD इज सेम एज BC, इसको क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो साइड है AD BC के इक्वल होगा। नाउ what about this angle, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, और ये डीबी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो बाय साइड एंगल side congruency, by side angle side congruency, triangle APD is congruent to triangle CQB, okay? So this is the first part which is proved. ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अब जो रिमेनिंग साइड है AP और सेकंड ट्रायंगल का जो रिमेनिंग साइड, क्योंकि ये AP इज अपोजिट टू एंगल 1, एंगल 1 इज सेम एज 2, तो इट्स अपोजिट साइड विल बी CQ। सो हियर व्हाट वी हैव, AP इज इक्वल्स टू C, AP is same as CQ by CP CT, and this is the second part, ये वाला पार्ट हो गया, ये दोनों पार्ट कोरिलेटेड, ओके। नाउ थर्ड पार्ट हमको क्या देखना है, ट्रायंगल AQB और CPD, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो लगभग यही पार्ट यहाँ रिपीट होगा, लेकिन एंगल्स ट्रायंगल्स चेंज है तो लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। सो अगेन इन ट्रायंगल AQB and triangle CPD, AQB and CPD, again what we have, BQ is same as PD, BQ is same as PD, ये गिवन है, ओके। अगेन ये जो एंगल है, एंगल 3 and angle 4, again AB is parallel to CD because ABCD is a parallelogram and they are equal also, है ना। तो यहां पर आप चाहें तो पहले इसको भी लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, alternate interior angles, okay, and AB is same as CD, AB is same as CD, ये opposite sides of parallelogram. So again by side angle side congruency, triangle
AQB is congruent to triangle CPD. ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है जो हमें प्रूफ करना था. ओके, नाउ जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल में AQ इज द रिमेनिंग साइड. तो यहां AQ जो है, AQ is opposite to angle 3 and angle 3 is same as angle 4, so its opposite side is CP by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट पार्ट आ गया, AQ is equals to CP. अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन चाहिए तो इसको आप नंबर 2 लिख दें, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है जो हमें प्रूव करना था. अब देखिए यहां पर बाय रिलेशन 2 and 4 इन क्वाड्रिलेटरल AQCP को हमको क्या बताना है, पैरेललोग्राम बताना है. यहां से देखिए AP जो है ये CQ के इक्वल है, AQ is same as CP, so both the pairs of opposite sides are equal. हमने प्रॉपर थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल if both the pairs of opposite sides are equal then it will be a parallelogram. So in quadrilateral APCQ, AP equals to CQ from 2 and AQ equals to CP from 4. So what we have here, since both the pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then quadrilateral APCQ is a parallelogram. So this is the last relation, APCQ is a parallelogram. तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन यदि आप जो प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम के उनको स्टेप बाय स्टेप और पार्ट बाय पार्ट यूज करेंगे तो ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा. तो अभी हमने आज देखा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल है और क्राइटेरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम, इन पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं. इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरम के फॉर्म में भी हैं. यदि आप उनको सॉल्व करके देखेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड है. इनको हम यूज करके और वो जो थ्योरम्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो केवल क्वेश्चन भर नहीं है, वो थ्योरम्स जैसे हैं, उनको आपको याद रखना है क्योंकि आगे चल के जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उन स्टेटमेंट्स का आप यूज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.